श्रीमती शेख हसीना के साथ जो पूर्व सैनिक हैं, इस अभियान से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए, उनसे अपने अनुभव विचार विमर्श करते हुए, अनुभव साझा करते हुए ये भावनात्मक अवसर भी है, एक भावनात्मक जुड़ाव भारत बांग्लादेश के संबंधों में। अलग अलग जो फोटोग्राफ्स हैं उनमें महत्वपूर्ण अवसरों को दर्शाया गया है बांग्लादेश के इस स्वाधीनता संग्राम के। एक विशेष फोटोग्राफ जिसके पास खड़े होकर के विशेष तौर पर उसे याद करने की कोशिश की जा रही है विशिष्ट अतिथिगणों द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, साथ में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मोनिक्षा सेंटर और वहां पर स्थित जोरावर हॉल में कुछ ही क्षणों के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती शेख हसीना का आगमन होगा। मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती शेख हसीना सबसे पहले मंच पर जाने से पूर्व अभिवादन करते हुए उन परिजनों का जिन्हें आज विशेष तौर पर सम्मानित किया जा रहा है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए उन रणबांकुरों के परिजन, एक बहुत ही विशेष भावनात्मक अवसर उन शहीदों को याद करने का, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और साथ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंच की ओर अग्रसर।
Honorable Prime Minister of Bangladesh, Honorable Ministers, esteemed awardees, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Today we have gathered here in this august ceremony to honor 7 valiant martyrs of the Indian Armed Forces who had made their supreme sacrifice during the Liberation War of Bangladesh in 1971. Excellencies, ladies and gentlemen, to begin this ceremony, it is our great pleasure to invite the Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, to deliver her speech. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of Bangladesh. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, distinguished ministers, respected family members of the martyrs, respected war veterans of Bangladesh Liberation War, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. A very good afternoon to you all. I am greatly honored to be present here at a very unique event to pay tribute to some very special Indian friends who sacrificed their lives for the independence of Bangladesh. On behalf of the people and the government of Bangladesh, I acknowledge the debt of gratitude to the martyrs and their families. In his historic speech of the 7th March 1971, Father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman called upon Bengalis to fight for liberation of Bangladesh. Bangabandhu Sheikh Mujib said, I quote, "This time the struggle is for our freedom. This time the struggle is for our independence," unquote. He declared the independence on the 26th March 1971 before he was arrested. Responding to the call of Bangabandhu, the whole nation fought against the Pakistani occupation forces and earned ultimate victory on the 16th December. We are grateful to the government and the people of India for their extraordinary support to war of liberation. Many valiant soldiers of Indian armed forces had sacrificed their lives for the liberation of Bangladesh. We always remember with gratitude their contributions and sacrifices. This is a long cherished moment as we are today remembering those who laid down their lives. Dear friends, the initiative to recall the contribution of foreign friends of the Liberation War of 1971 and honor them was taken up by my government in 2009. We have started this in July 2011 when we conferred the Bangladesh Freedom Award, the highest civilian award for a foreign nation, on the former Indian Prime Minister Srimati Indira Gandhi. We continued with giving honors to former Indian Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee and President Sri Pranab Mukherjee. Ladies and gentlemen, history of Bangladesh has been written by the blood of the Indian martyrs along with valiant freedom fighters of Bangladesh. They fought together for the independence of Bangladesh. The story of their sacrifice will be remembered from generation to generation in our own countries. Let the souls of the martyrs rest in peace. Let us celebrate the lives of our heroes. Distinguished guests, the martyrs of India and Bangladesh who fought together in 1971 are blessing us from the heaven. Let us reiterate our resolve to work together for shared peace and prosperity. Let us pledge to work closely
to materialize the dreams and aspirations of Bangabandhu Sheikh Mujib for establishing Bangladesh as a golden Bangladesh. I thank you all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, may Bangladesh live forever. Long live Bangladesh-India friendship. Thank you, Honorable Prime Minister of Bangladesh, for your valuable words. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would now like to invite Lieutenant Colonel retired Kaji Sajjad Ali Johir Bir Pratik, a valiant freedom fighter of Bangladesh Liberation War and the recipient of Shadhinata Padak, for reading out the 7 citations. The awards will be handed over to each representative of the martyred families by the Honorable Prime Minister of Bangladesh after each citation is read. Excellencies, ladies and gentlemen, Indian Armed Forces displayed indomitable courage and made the supreme sacrifice in the liberation war of Bangladesh. The Indian martyrs' blood mixed with the soil of Bangladesh and flowed through Padma, Meghna, Jamuna, and Tista. They died so that our nation could live. We, the people of Bangladesh, including Mukti Bahini and the Indian Armed Forces, have shed the blood together in 1971 and have a shared past. Without a shared past, there can be no shared future. Bangladesh remembers the martyred Indian soldiers with great respect and adulation. Let history say so, that together we delivered freedom through victory. Now I will read out the citation of the 7 martyred Indian soldiers who will be honored today. Shahid Lance Knight Albert Ekka Paramveer Chakra. May I now request Srimati Balambini Ekka, wife of Shahid Lance Knight Albert Ekka Paramveer Chakra, to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Albert Ekka was born on 27 December 1942 in Jari village of Gumla district in Jharkhand. He joined the Bihar Regiment of the Indian Army in 1962 and later transferred to the 14 Guard Regiment. On 3rd December 1971 at Gangasagar, Lance Knight Albert Ekka bravely charged at the strongly fortified defense position of Pakistan's 12th Frontier Force Regiment, destroying the enemy lines from bunker to bunker. Despite being wounded, he continued to advance and embrace martyrdom by enemy machine gun fire. For his great sacrifice, Shahid Lance Knight Albert Ekka was awarded the Paramveer Chakra, highest gallantry award by the Government of India. Shahid Major Anup Singh Gahlat, Mahavir Chakra. Anup Singh Gahlat was born on 19 September 1940 in Nangloi village in New Delhi. On 3rd December 1971,
When posted in 3rd Dogra Regiment, he was given the task of establishing a red block deep inside enemy-held territory in Laksham, Kumilla. He infiltrated and inflicted heavy casualties on the enemy before his company came under heavy fire. To rescue his company, he broke through the enemy attack when he was mortally wounded in a hand-to-hand combat and embraced martyrdom. In this mission, Major Galwat displayed bravery and exemplary leadership. For his great sacrifice, Shahid Major Anup Singh Gehlat was awarded Mahavir Chakra by the Government of India. May I now request Srimati Santosh Serwat, sister of Major Anup Singh Galwat, Mahavir Chakra, to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Shahid Subedar Malkiyat Singh, Mahavir Chakra. Malkiyat Singh was born on 31 May 1929 in Lohad Badri village in Ludhiana district of Punjab. During the Liberation War, Subedar Malkiyat Singh was commanding a platoon of 14 Punjab Regiment near Garizpur in Jessore. His position was attacked in strength by Pakistani infantry and armor. Under intense enemy tank attack, he moved from trench to trench, encouraging his men to fight till the last. In the process, he was hit by a tank shell and embraced martyrdom. In this action, Subedar Malkiyat Singh displayed bravery and exemplary leadership. For his great sacrifice, Shahid Subedar Malkiyat Singh was awarded Mahavir Chakra by the Government of India. May I request Srimati Gurdev Kaur, wife of Shahid Subedar Malkiyat Singh, Mahavir Chakra, to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Shahid Havildar Sugan Singh, Mahavir Chakra. Sugan Singh was born on 6 March 1942 in Nagar, Rajasthan. On 9 December 1971, as a section commander of the 7 Rajputana Rifles, he was ordered to attack enemy position at Moynamuti, Kumilla. He charged against a machine gun post with utter disregard to his personal safety. Even after being wounded, he continued his mission. He embraced martyrdom while destroying the enemy trenches and bunkers. Havildar Sugan Singh displayed indomitable courage, and his gallant action contributed to the victory in the battle. For his great sacrifice, Havildar Sugan Singh was awarded Mahavir Chakra by the Government of India. May I now request Srimati Samad Kanwal, wife of Havildar Sugan Singh, Mahavir Chakra, to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Shahid Lieutenant Samir Das, VSM, NM. Samir Das was born on 1st March 1942 in Assam. He was a clearance diving officer of Indian Navy. During the liberation of Bangladesh, he was deputed to the Tripura front, where he led a team of army and naval personnel to conduct operation alongside Mukti Bahini deep inside the Bangladesh's riverine areas as a part of Operation Jackpot. He laid down his life fighting the enemy forces during the operation. Samir Das displayed outstanding gallantry till the end and made supreme sacrifice in the best traditions of Indian Navy. May I request Srimati Kabita Das, sister-in-law of Shahid Lieutenant Samir Das, VSM, NM, to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina.
Shahid Squadron Leader A.B. Samanta. A.B. Samanta was born on 1st February 1933 in Kolkata. He served in the 37th Squadron of the Indian Air Force during the Liberation War of Bangladesh. On 4th December 1971, while carrying out a 4-aircraft counter-air strike over Tejgaon airfield in Dhaka, his aircraft was hit by anti-aircraft gunfire. This resulted in the crash of the aircraft, and he attained martyrdom during the mission. Squadron leader A.B. Samanta made the supreme sacrifice while fulfilling his assigned mission. May I now request Srimati Arundhati Samanta, wife of Shahid Squadron leader A.V. Samanta, to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Shahid Lance Nayak Mohini Ranjan Chakraborty Veer Chakra. Mohini Ranjan Chakraborty was born on 10th May 1943 in Saheb Kanchanpara village in Dakshin Dinajpur district of West Bengal. As a member of the 78th Battalion of the Border Security Force, he was tasked to capture the north bank of Fulkumari River near Rajganj. The battalion fought with determination to defeat the enemy. During the assault, Lance Nayak Mohini Ranjan Chakraborty sustained bullet injuries and embraced martyrdom, and BSF troops were able to capture the territory. For his great sacrifice, Shahid Lance Nayak Mohini Ranjan Chakraborty was awarded Veer Chakra by the Government of India. May I now request Sri Vishwanath Chakraborty, brother of Shahid Lance Nayak Mohini Ranjan Chakraborty, Veer Chakra, to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I now request the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to address this gathering. Her Excellency, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो बांग्लादेश की इस मुक्ति संग्राम के समय जिन्होंने मानवता की खातिर पराक्रम की पराकाष्ठा की, बलिदान का इतिहास रचा, उन परिवारजनों को आज बांग्लादेश सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। इतिहास की उस तवारीख को ऋण स्वीकार करने के एक महान परंपरा के लिए मैं बांग्लादेश सरकार का भी अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज एक विशेष दिन है। आज भारत तथा बांग्लादेश के शहीदों के बलिदान को स्मरण करने का दिन है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए जिंदगी देने वाले योद्धाओं को याद करने का दिन है।
बांग्लादेश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ने वाले भारतीय फौज के जाबाजों को याद करने का दिन है। लेकिन ये अवसर बांग्लादेश पर किए गए उस क्रूर प्रहार को भी याद करने का है जिसने लाखों इंसानों की जिंदगी छीन ली। किंतु साथ ही इतिहास की जो त्रासदी बांग्लादेश पर गुजरी, उसके पीछे की विकराल मानसिकता को ये नकारने का भी अवसर है। आज का ये अवसर भारत और बांग्लादेश के 140 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के बीच अटूट विश्वास के स्ट्रेंथ को पहचानने का अवसर है। हम अपने समाजों को कैसा एक सशक्त तथा समृद्ध भविष्य में दे सके, इस पर चिंतन करने का भी एक ये उचित अवसर है। एक्सेलेंसी तथा साथियों, कई कारणों से आज का दिवस ऐतिहासिक दिवस है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए सभी भारतीय सैनिकों के परिवारों के लिए भी ये कभी न भूल पाने वाला क्षण है। आज बांग्लादेश उन 1661 भारतीय सैनिकों का सम्मान कर रहा है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। मैं भारत के 125 करोड़ लोगों की तरफ से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का, वहां की सरकार और बांग्लादेश के लोगों का इस भावात्मक पहल के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत के वीर सैनिक तथा हमारी गौरवशाली सेना केवल बांग्लादेश के साथ हो रहे अन्याय एवं नरसंहार के खिलाफ नहीं लड़े थे। ये वीर भारतीय संस्कृति में निहित मानव मूल्यों के लिए भी लड़े थे। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस समय 7 भारतीय शहीदों के परिवार यहां उपस्थित हैं। उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूरा भारत आपकी व्यथा, आपका दर्द और आपकी पीड़ा में सहभागी है। आपका त्याग और तपस्या अतुलनीय है। भारतीय सैनिकों के बलिदानों के लिए मैं और पूरा देश सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, बांग्लादेश का जन्म जहां एक नई आशा का उदय था, वहीं 1971 का इतिहास हमें कई अत्यंत दर्दनाक पलों की भी याद दिलाता है। 1971 में अप्रैल का यही वो महीना था जब बांग्लादेश में नरसंहार अपने चरम पर था। बांग्लादेश में पूरी एक पीढ़ी को खत्म करने के लिए संहार किया जा रहा था। हर वो व्यक्ति जो बांग्लादेश के गौरव से जुड़ा हुआ था, हर वो व्यक्ति जो भावी पीढ़ी को बांग्लादेश के अतीत के अवगत करा सकता था, उसे रास्ते से हटा दिया गया। इस नरसंहार का उद्देश्य केवल निर्दोषों की हत्या करना नहीं था, अपितु बांग्लादेश की पूरी सोच को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का था। लेकिन अनंत अत्याचार विजय नहीं हुआ। जीत मानव मूल्यों की हुई, करोड़ों बांग्लादेशियों की इच्छा शक्ति की हुई। बांग्लादेश की जन्म गाथा असीम बलिदानों की गाथा है और इन सभी बलिदानों की कहानियों में एक सूत्र, एक विचार कॉमन है और वह है राष्ट्र तथा मानवीय मूल्यों के प्रति अगाध प्रेम का। मुक्ति योद्धाओं का बलिदान राष्ट्र प्रेम से प्रेरित था। मुक्ति योद्धा मात्र एक मानव शरीर और आत्मा नहीं थे, बल्कि एक अदम्य तथा अविनाशी सोच के प्रतिनिधित्व करते थे। मुझे खुशी है कि मुक्ति योद्धाओं के लिए भारत की तरफ से भी कुछ प्रयास किए जाते रहे हैं। मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत मुक्ति योद्धाओं के परिवार से 10,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ने के लिए
स्कॉलरशिप दी जाती है। उनके परिवार कल्याण के लिए आज इस अवसर पर मैं 3 और घोषणाएं कर रहा हूं। अगले 5 वर्षों में मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा 10,000 और बच्चों तक पहुंचाया जाएगा, एडिशनल 10,000। मुक्ति योद्धाओं को 5 वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा फैसिलिटी दी जाएगी और भारत में मुफ्त इलाज के लिए प्रतिवर्ष 100 मुक्ति योद्धाओं को एक स्पेशल मेडिकल स्कीम के तहत सहायता दी जाएगी। मुक्ति योद्धाओं के साथ साथ बांग्लादेश के लिए भारतीय फौज का संघर्ष और बलिदान को भी कोई नहीं भुला सकता। ऐसा करने में उनकी एकमात्र प्रेरणा थी बांग्लादेश की जनता के प्रति उनका प्रेम और बांग्लादेश के लोगों के सपनों के प्रति उनका सम्मान। और यह भी याद रखना चाहिए कि युद्ध की बर्बरता में भी भारतीय सेना ने अपने कर्तव्य से वो कभी नहीं मुड़ी और युद्ध के नियमों के पालन की पूरे विश्व के सामने एक मिसाल हमारे फौजियों ने रखी थी। कोई भी भारतीय हमारे हर फौजी की कंडक्ट के लिए आज भी गर्व कर सकता है। एक एक घटना इतिहास के अंदर स्वर्णिम पुष्प के रूप में अंकित है, हर शब्द उस रूप में अंकित है। यहां बहुत शायद कम लोगों को मालूम होगा, यहां भाई अशोक तारा बैठे हैं। अशोक जरा बाहर अगर आपको चित्र देखते होंगे तो संकट की घड़ी में इनके परिवार को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वो तस्वीर बाहर आप देखेंगे। तो आज विशेष रूप से उनको बुलाया गया था ताकि प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। कैसे कैसे पराक्रमों से भरी हुई कथाएं, त्याग और बलिदान की गाथाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। भारतीय फौज का यह चरित्र था कि 90,000 उन सैनिकों को सुरक्षित जाने दिया गया। 1971 में भारत की दिखाई ये इंसानियत पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश न केवल क्रूरता और को परास्त करने वाले देश में बल्कि क्रूरता की मूलभूत सोच को नकारने वाला यह देश है। बांग्लादेश पर चर्चा के बिना बंगबंधु के अधूरी है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे की सोच के पूरक है। बंगबंधु बांग्लादेश के स्वतंत्रता के प्रमुख सूत्रधार थे। वो अपने समय से ही कहीं आगे की सोच रखते थे। उनकी हर एक पुकार जनता की ललकार थी। एक मॉडर्न, लिबरल तथा प्रोग्रेसिव बांग्लादेश का उनका विजन आज भी बांग्लादेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। 1971 के बाद यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का ही नेतृत्व था जिसने बांग्लादेश को अशांति और अस्थिरता के दौर से बाहर निकाला था। समाज में मौजूद द्वेष तथा आक्रोश को मिटाकर महान बंगबंधु ने बांग्लादेश को शांति तथा विकास का एक मार्ग दिखलाया। सोनार बांग्ला के सपने को सच करने की राह दिखाई। भारत की उस समय की युवा पीढ़ी तो उनसे विशेष रूप से प्रभावित थी और यह मेरा सौभाग्य था कि मैं स्वयं उनके विचारों के ज्ञान से लाभ उठा सका। आज बंगबंधु न केवल दक्षिण एशिया के बल्कि पूरे विश्व में शांति और सहअस्तित्व की स्थापना करने वाले नेता के तौर पर याद किया जाता है। बंगबंधु की बेटी एक्सेलेंसी शेख हसीना आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर यहां है।
इस अवसर पर मैं उनके साहस की भी प्रशंसा करना चाहता हूं। जिस मुश्किल हालत से उन्होंने खुद को निकाला, अपने देश को निकाला, वो साहस हर किसी में नहीं होता है। कोई कल्पना कर सकता है परिवार के 16 लोग कत्ल किए जाए और एक बेटी सोनार बंगला के सपनों को साकार करने के लिए जूझती रहे। ये इतिहास में सामान्य घटना नहीं है। वे चट्टान की तरह आज भी खड़ी है और अपने देश को विकास पथ पर ले जाने के लिए काम कर रही है। दोस्तों, आज हमारे क्षेत्र को, दुनिया के इस प्राचीन भूभाग को मुख्यतः 3 विचारधाराएं परिभाषित करती है। ये विचारधाराएं हमारे समाज तथा सरकारी व्यवस्थाओं की प्राथमिकताओं का आईना है। इसमें एक सोच है जो आर्थिक विकास पर केंद्रित है, देश को समृद्ध तथा शक्तिशाली बनाने पर फोकस है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर आधारित है। इस सोच का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है बांग्लादेश की प्रगति एवं उन्नति। 1971 में बांग्लादेश के नागरिकों की औसत आयु, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत और पाकिस्तान की तो जो स्थिति थी उसमें आज कई गुना वो आगे बढ़े हैं। आज बांग्लादेश के नागरिकों की औसत आय भारत से भी ज्यादा है। पिछले 45 वर्ष में बांग्लादेश की जीडीपी 31 गुना बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय में 13 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इन्फेंट मोर्टालिटी 222 से घटकर अब 38 रह गई है। प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। स्वतंत्रता के बाद अब तक बांग्लादेश का निर्यात 125 गुना बढ़ चुका है। परिवर्तन के ये चंद पैरामीटर्स अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के विजन पर चलते हुए बांग्लादेश आर्थिक प्रगति की नई सीमाएं पार कर रहा है। साथियों, साथ ही साथ एक दूसरी सोच, सबका साथ सबका विकास। मेरा यह स्पष्ट मत है कि मेरे देश के साथ ही भारत का हर पड़ोसी देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो। अकेले भारत का विकास अधूरा है और हम ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हमारे रीजन में हम अकेले चल पड़ेंगे, हम अपना ही कर लेंगे। जी नहीं, हमारी ये सोच रही है कि हम हमारे अड़ोस पड़ोस में भी सुख, समृद्धि, शांति के पुरस्कार है और यही तो हमारा सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ 125 करोड़ तक सीमित नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी साथ लेकर के सबके विकास में सहभागी होने की हमारी कल्पना का इतिहास है। और इसलिए हर देश के प्रति हमने सदैव मित्रता का हाथ बढ़ाया है। हर देश को अपनी समृद्धि का सहभागी बनाने के लिए भारत ने हमेशा हमेशा आमंत्रित किया है। स्वार्थी न बनकर हमने पूरे क्षेत्र का भला चाहा है। इस सोच की सफलता का प्रत्यक्ष उदाहरण है भारत बांग्लादेश के संबंधों का सशक्त ग्राफ और इससे उत्पन्न दोनों समाजों के लिए आर्थिक बेनिफिट्स हैं। हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो अथवा सिक्योरिटी का विषय हो या फिर कई देशों से लंबित, कई वर्षों से लंबित लैंड बाउंड्री तथा मैरीटाइम बाउंड्री का डिस्प्यूट सेटलमेंट का मुद्दा हो, हर क्षेत्र में
हमारा सहयोग परस्पर शांति, साझा विकास, आपसी विश्वास तथा क्षेत्रीय विकास की सोच की सफलता के टेंजिबल प्रमाण है। साथियों, लेकिन दुख की बात है कि इन दो विचारधाराओं के विपरीत भी दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है। ऐसी सोच जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक है। ऐसी सोच जिसका वैल्यू सिस्टम मानवता पर नहीं अपितु हिंसा, अतिवाद, आतंक पर आधारित है, जिसका मूल उद्देश्य है टेररिस्ट द्वारा टेररिज्म फैलाना। एक ऐसी सोच जिसके नीति निर्माताओं को मानववाद से बड़ा आतंकवाद लगता है, विकास से बड़ा विनाश लगता है, सृजन से बड़ा संहार लगता है, विश्वास से बड़ा विश्वासघात लगता है। यह सोच हमारे समाज के शांति तथा संतुलन और उसके मानसिक तथा आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। यह विचारधारा पूरे क्षेत्र तथा विश्व की शांति तथा विकास में अवरोधक है। जहां भारत और बांग्लादेश समाज के आर्थिक विकास की थॉट स्ट्रीम्स में सहभागी है, वहीं हम इसी तीसरी नकारात्मक विचारधारा के विक्टिम भी है। साथियों, हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि क्षेत्र के सभी देशों के सिटीजन्स सफलता और समृद्धि की ओर बढ़े और इसके लिए हमारे सहयोग के द्वारा हमारे द्वार सदा सदा खुले रहें। लेकिन इसके लिए आतंकवाद और आतंकवादी सोच का त्याग अनिवार्य है। भारत बांग्लादेश संबंध न सरकारों के मोहताज है और न ही सत्ता के। भारत और बांग्लादेश इसलिए साथ है क्योंकि दोनों देशों के 140 करोड़ लोग एक दूसरे के साथ हैं। हम सुख दुख के साथी हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि जो सपना मैं भारत के लिए देखता हूं, वही शुभकामना मेरी बांग्लादेश के लिए भी है और भारत के हर पड़ोसी देश के लिए भी है। मैं बांग्लादेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक दोस्त होने के नाते भारत जितनी मदद कर सकता है वो करता रहेगा। आखिर मैं एक बार फिर मुक्ति योद्धाओं को, भारत के वीर सैनिकों को नमन करता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजन तथा उपस्थिति के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का खास तौर पर अभिनंदन करता हूं। भारत सदैव एक घनिष्ठ तथा विश्वसनीय मित्र की तरह बांग्लादेश के साथ हर घड़ी हर सहायता के लिए तैयार रहेगा ही। मैं फिर एक बार इन सभी वीरों का नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बांग्ला। Thank you, Prime Minister, for sharing your thoughts on this occasion. All representative recipients are requested to please position themselves on the stage for a group photograph with the two Prime Ministers.
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए अमर शहीदों के परिजनों को आज विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मंच पर वे सभी परिजन उपस्थित, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली, इन सभी परिजनों के साथ इस अवसर को विशिष्ट यादगार बनाने के लिए एक फोटोग्राफ, एक बहुत ही ख़ास मौका है, एक भावनात्मक क्षण, अमर शहीदों को समर्पित ये विशेष समारोह, जिन्होंने विश्व मानचित्र पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया, देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। आज उन्हीं अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना इस विशेष समारोह के समापन के पश्चात प्रस्थान करते हुए, इसके साथ ही 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अमर शहीदों को समर्पित ये समारोह संपन्न होता है। नमस्कार।